Hello everyone, welcome to PCA. Today we are going to discuss the chapter 4 of your textbook, and the name of the chapter is executive. ठीक है? So before coming to the definition of what executive is, let us see what are the different parts of government, what are the different branches of government, and what are their respective functions, and then we will come to know what is the function, what are the powers of executive. So first we will try to understand executive में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? So as far as the chapter 4 of your text is concerned, we are in this chapter we are going to discuss executive and its various types. Then we are going to discuss political executive and permanent executive, then parliamentary executive, presidential executive, then इसी तरीके से यूनियन एग्जीक्यूटिव आपको अलग से पढ़ना है. यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें आती है, देन स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से पॉलिटिकल पोजीशंस आते हैं. इसी तरीके से जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में पॉलिटिकल ऑफिसेज आते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनका कंपोजिशन, उनके पावर्स, ठीक है, उनके फंक्शंस एंड ऑल दिस. और इसमें हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फर्क है, बिकॉज वी हैव टू डील विद पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जीक्यूटिव इज. ठीक है? My dears, before coming to the definition of what executive is, let us see. Usually the government consists of three organs: legislature, executive and judiciary. These three organs together constitute a government. As far as legislature is concerned, legislature का क्या काम है? The work of the legislature is to make laws. ठीक है? We are going in your next chapter, which is basically titled as legislature. We are going to deal with it deeply. ठीक है? और इस तरीके से जुडिशरी है, उसके बाद आपका 6th चैप्टर. ठीक है? We are going to deal with the judiciary in a deep way. ठीक है? So as far as the organs of the government are concerned, there are three organs of the government: legislature, executive and judiciary. And what is the work of legislature? Legislature has to frame laws, to make laws. ठीक है? And what is the work of executive? law तो हमने बनाया है, we have made a law, we have framed a law, but who will implement that law? ठीक है? That is the work of executive. ठीक है? To implement the law. ठीक है माय डियर्स? लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक लॉज. और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? वंस लेजिस्लेचर हैज मेड अ लॉ एंड इट इज द वर्क, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू इंप्लीमेंट दोज लॉज. ठीक है? नाउ लेट अस सी जुडिशरी. जुडिशरी का यूजुअली क्या काम होता है? इफ एनी ऑफ दीज ऑर्गन्स try to overshadow each other, तो जुडिशरी को वहां पे क्या करना होगा? जुडिशरी हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. और प्लस जुडिशरी को एक तो
apart from maintaining a balance between legislature and executive, judiciary को plus you people know क्या काम है, to give judgments, ठीक है, to give verdicts regarding different issues, regarding different problems and different conflicts, ठीक है. एक है इसका बैलेंस, टू मेंटेन बैलेंस between legislature and executive, and plus to give judgments, ठीक है. My dears, when we were discussing the first chapter of your book Constitution at Work, I have told you at that time that Constitution has specified the powers of each organ of the government, such that one does not try to overpower the other, ठीक है. Constitution has specified the powers of legislature, ठीक है. What is the procedure of law making, ठीक है. How a particular law can be passed, how a constitutional amendment can be brought, ठीक है. उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है. इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के क्या पावर्स है वो भी अलग से स्पेसिफाई ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं, ठीक है. सो ह्यूमन नेचर क्या होता है कि ह्यूमन नेचर ऑलवेज आई वुड से पावर हंग्री होता है, ठीक है. अ मैन ट्राइज टू हैव एज मच पावर एज ही वांट्स, ठीक है. तो एक ह्यूमन नेचर में पावर को इंक्रीज करने की एक फितरत है इन एवरी ह्यूमन बीइंग. तो कीपिंग दैट इन माइंड, द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, दे हैव स्पेसिफाइड द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर के क्या पावर है, लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन है वो अलग से है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ. जुडिशरी का क्या काम है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली आउटलाइन किया है, ठीक है. बिल्कुल एक्सप्लिसिटली कहा है कि लेजिस्लेचर का ये काम है, एग्जीक्यूटिव का ये काम है, जुडिशरी का ये काम है. लेजिस्लेचर का क्या काम है, टू मेक लॉज, टू फ्रेम लॉज, ठीक है. एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, टू इंप्लीमेंट दोज लॉज. हाँ, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, पॉलिसी बनाई, बट हु विल इंप्लीमेंट दैट पॉलिसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ठीक है. तो वो काम किसको दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को. और जुडिशरी का क्या काम है, टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है. अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश करना चाहते हैं तो जुडिशरी हैज द रूल एट दैट टाइम. और प्लस जुडिशरी का क्या काम है, टू प्रोनाउंस जजमेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग डिफरेंट इश्यूज, रिगार्डिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स. And government in a democratic context, government is not only one person, ठीक है. Government consists of all these organs, ठीक है. All these organs together constitute a government. So now let us see how this executive works, ठीक है. Who are the different people there in the executive, ठीक है. What are the different of which are the offices which are basically responsible or which are responsible for implementing different laws and different policies, ठीक है. My dears, so अब आप एग्जीक्यूटिव की डिफिनेशन खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है. यू कैन से दैट एग्जीक्यूटिव इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है. सो यू कैन से एग्जीक्यूटिव इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है. नाउ लेट अस सी, ये जो एग्जीक्यूटिव होता है मेनली दो तरह का होता है, ठीक है. एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव
और दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। माइंड यूज, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है, और परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपने सुना, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, और अगर हम कश्मीर की बात करेंगे केएएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, दे कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और प्लस जो एम्प्लॉयज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, अदर एम्प्लॉयज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की हम देखेंगे। As far as political executive is concerned, political executive is basically the head of the government and his or her ministers, who are responsible for the government's policies. Head of the तो political executive में कौन होगा? Head of the government, head of the government and his ministers, ठीक है। अगर हम आज देखेंगे इंडिया में, हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेजेंटली हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है, इस यू कैन कॉल इट नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को आप कह सकते हैं कि इट इज ए नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इन इंडिया गवर्नमेंट, यूजुअली गवर्नमेंट की टर्म होती है, इट इज 5 years, ठीक है। 5 years के बाद मे बी पीपल मे नॉट वोट देम पावर अगेन, ठीक है। तो they have to leave their offices and new government will come, ठीक है। So that is why they are also known as non-permanent executive. On the other hand, they are assisted, ठीक है, they are assisted by परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हु आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव? परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, केएएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, ठीक है, जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होते हैं, दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मिनिस्टर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, अमित शाह, ठीक है, और उसके अंदर जो पोर्टफोलियोज आते हैं, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर जो यूटीज में होता है वो उसके अंदर आता है, ठीक है, प्लस जो अदर होम अफेयर्स होते हैं उसके अंदर उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कैन ही डू दिस ऑल बाय हिमसेल्फ अलोन? नो। बेसिकली ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, they are basically assigned the responsibility to assist him, ठीक है, in drafting policies and in implementing laws, ठीक है। So this was all about political executive, which we can also term as non-permanent executive, or then we have permanent executive, which is basically the employees in the government machinery who assist the government, who assist the ministers in performing their functions and implementing laws, ठीक है। Mind yes, political executive and permanent executive exists everywhere in every country, ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करेंगे, नेशनल लेवल पे भी है, यूनियन गवर्नमेंट में भी है, और स्टेट लेवल गवर्नमेंट में भी है। बट देयर इज ऑल्सो ए क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। सो before going to discuss what is parliamentary executive and what is presidential executive, it is very imperative for us that we have to discuss what is parliamentary form of government and what is presidential form of government, ठीक है बेटा।
माय डियर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। माय डियर्स, इंडिया में जो गवर्नमेंट है इट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और शाबाश, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहां पे है? यूएसए में है, ब्राजील में है, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्या क्या होता है? इसमें नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। In parliamentary form of government we have nominal and real executive. I've already told you in India we have a place, we have parliamentary form of government in place, ठीक है। तो इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को हम कह सकते हैं डिजोर, ठीक है, डिजोर या टिट्यूलर हेड, ठीक है, विच इज बेसिकली एग्जिस्टिंग ओनली इन थ्योरी, ठीक है, और या इन लीगल सेंस वो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। बट हु इज रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? इट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएम। और इसको हम कहते हैं अभी डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो एज फार एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, देयर इज नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। और इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट है। रियल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। और नॉमिनल को हम क्या कहते हैं? डिजोर या टिट्यूलर है, ठीक है। डिजोर का मतलब है विच एग्जिस्ट इन थ्योरी, ठीक है, लीगली, ठीक है। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड वी कॉल हिम ऑल्सो एज डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। माय डियर्स, इसी तरीके से माय डियर्स जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है विच प्रेजेंट इन इंडिया विच इज प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ही इज हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। Nominal executive is head of the state, while as real executive is head of the government. So as far as parliamentary form of government is concerned, who is head of the state? President, ठीक है। And who is head of the government? Prime Minister, ठीक है। और इसके बाद जो हेड ऑफ द स्टेट है, ही और शी कैन बी इलेक्टेड और मोनार्किकल, ठीक है। एज फार एज इंडिया में अगर हम देखेंगे, वी हैव इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। और आपको एक पॉइंट यहां पे याद रखना है, वेयर एवर देयर इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट वी कॉल दैट कंट्री रिपब्लिक, ठीक है। जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। दो इनडायरेक्ट ही है बट इलेक्शन है, ही हैज टू गो थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। तो wherever we see the head of the state is elected person, जहां पे भी हम देखेंगे कि head of the state is elected person, we call that country republic, ठीक है। तभी अगर आप प्रेम्बल आप लोगों को याद है, we the people of India having to constitute India into सॉवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, और रिपब्लिक भी उसमें एक वर्ड है, ठीक है। सो रिपब्लिक यही है वायर हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, ठीक है। और अगर आप यूके में देखोगे, यूके बिकॉज यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, वहां पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्किकल है, ठीक है। बेसिकली वहां पे आज क्वीन है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, और शी इज मोनार्किकल। तो हम ब्रिटेन को नहीं कह सकते कि ब्रिटेन इज रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिकन स्टेट, ठीक है। बिकॉज इन यूके, इन ब्रिटिश, द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन,
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल, एज फार एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट इज बोथ head of the state and head of the government. My dears, as far as presidential form of government is concerned, the president is both head of the state as well as head of the government. ठीक है, जो head of the state is his basically ceremonial position, ठीक है, and as the head of the government he leads the executive organ of the government. लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, प्रेसिडेंट जो होता है ही इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एज द हेड ऑफ द स्टेट इज हिज सेरेमोनियल पोजीशन एंड एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। सो अब आपको मालूम होगा, अब आपको ये समझ में आया होगा कि जो इंडिया में प्रेसिडेंट है, since he is nominal, ठीक है, he has powers only in theory and those powers in actual practice are exercised by PM, ठीक है, PM and his council of ministers, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें कहां देखने को मिलती है, यूएसए में, ठीक है, ब्राजील में, और इसी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ही इज ऑलवेज इलेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने क्या देखा है, देयर इज नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल कौन होता है, प्रेसिडेंट, रियल कौन होता है, पीएम, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम, ठीक है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्टेड या मोनार्किकल हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इलेक्टेड है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इंडिया ए रिपब्लिकन स्टेट, ठीक है, रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट lies in the hands of the president, ठीक है। So you can in other words you can say president is both head of the state as well as head of the government, ठीक है। और as head of the state is his ceremonial position and as the head of the government he basically leads the executive organ of the government। और जो presidential form of government हमें कहां पे देखने को मिलता है, यूएसए में और ब्राजील में, ठीक है। और माय डियर्स, इसी तरीके से एक अनदर वेरिएंट आया है, उसको हम कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। वो श्रीलंका में पाई जाती है, वहां पे जहां पे बेसिकली प्रेसिडेंट और पीएम के ऑलमोस्ट सेम पावर्स होते हैं और एट टाइम्स प्रेसिडेंट एंड पीएम कैन बी फ्रॉम द सेम पार्टी, ठीक है। वो तो अभी हमारा डिस्कशन नहीं है। तो इंडिया में अब कौन सा एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आते हैं, पीएम आता है, देन अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड देन दे आर असिस्टेड बाय कौन लोग उनकी मदद करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, या जो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे केएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। बेटा देखिए ये एग्जीक्यूटिव बिल्कुल आसान समझना है। देखिए बेटा मैंने आपको कहा लेजिस्लेचर का क्या काम है, टू मेक लॉज, टू फ्रेम लॉज। लेकिन वंस द लेजिस्लेचर हैज फॉर्म्ड द लॉ, वंस द लेजिस्लेचर हैज मेड द लॉ, तो उस लॉ को आप इंप्लीमेंट भी करना है,
या ऐसी अलमारी में रखना है, नो, वी हैव टू इंप्लीमेंट दैट लॉ, ठीक है। और वो इंप्लीमेंट कौन करेगा? फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर ने कानून बनाया कि you cannot ride a motorcycle without wearing a helmet, ठीक है, ये लॉ बनाया गया, ठीक है। और अब इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ठीक है, यहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, ठीक है, पुलिस का कोई आदमी होगा, वो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल प्रैक्टिस में उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। व्हेन यू आर राइडिंग योर मोटरसाइकिल विदाउट वेयरिंग ए हेलमेट, यू विल बी आपको यू विल बी गिवन पनिशमेंट और यू विल बी फाइन्ड एज पर द लॉ, ठीक है। तो तब जाके वो लॉ एक्चुअल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर बेसिकली दो इंचार्जेस ऑफ द डिपार्टमेंट, और एक्चुअल प्रैक्टिस में उस लॉ को ग्राउंड लेवल पे कौन इंप्लीमेंट करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो so far we have discussed एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और फिर मैंने आपको दिखाया कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। फिर एग्जीक्यूटिव के दो टाइप्स, ठीक है, जो हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर एक कंट्री में। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक ब्रीफ टर्म होता है, ब्रीफ टर्म 5 ईयर 10 ईयर, ठीक है। और दे आर सब्जेक्टेड टू गेट इलेक्टेड वंस अगेन, ठीक है। अगर वो इलेक्ट नहीं हुए हैं दोबारा, तो देन देयर पोजीशन इज टेकन बाय सम अदर पर्सन, ठीक है। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है, दे रिमेन देयर ऑलवेज, ठीक है, टिल दे गेट रिटायर्ड। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दे आर बेसिकली एग्जिस्टेड बाय परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको पता चला कि नॉमिनल हेड कौन है, रियल हेड कौन है, असल में कौन किसके पास पावर्स है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको मालूम चला कि who wields the actual powers in the presidential form of government, and you also came to know who is head of the state and who is head of the government, and you also came to know where is parliamentary form of government in place and where is presidential form of government practice, ठीक है। और इसी तरीके से अब हम इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है प्रेसिडेंट, आता है वाइस प्रेसिडेंट, आता है प्राइम मिनिस्टर, आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरीके से स्टेट एग्जीक्यूटिव में इंडिया की स्टेट्स में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। और इनका हम बाज़ाब्ता तौर पर हाउ दे आर इलेक्टेड, ठीक है, और प्लस उनके पावर्स एंड उनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, वो सेपरेटली हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड हुआ। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।